वाहिगुरु जी। हरे कृष्णा। हरे राम। We cannot deny this fact, this truth that we all want to be happy. So this is what the seventh darshan talks about. Shat darshan, the six established schools of philosophy. छह गुरु छह कर, गुरु गुरु एक को, वेश अनेक. So that means छह तो established है. सातवां is लोकायत. लोकायत को चार वाक भी बोलते हैं. सेवंथ दर्शन इसे यावत जीवेत सुखम जीवेत. जब तक जीवित हो सुखी रहो या सुखी रहना चाहते हैं हम. कौन नहीं चाहता? हु डजंट वांट टू बी हैप्पी? इट इज जस्ट द आवर कन्विक्शन एंड थॉट प्रोसेस सेज कि हमको सुख बाहर से मिलेगा कि अंदर से मिलेगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. सुखी तो हर आदमी होना चाहता है, इसमें क्या शक है. चाहे वो वेद व्यास हो, चाहे वो शुकदेव जी हो, चाहे वो वशिष्ठ जी हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे वो जीसस स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो गुरु नानक की क्यों ना हो. सुखी तो होना हर एक आदमी का हक है और वी ऑल वांट इट. व्हेन आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी, व्हाई डिड आई डू इट? कि मजा नहीं आ रहा जिंदगी का. सो आई वांट टू बी हैप्पी. सो चारवाक को लोकायत भी बोला जाता है. चारवाक मीन्स अ प्लेजेंट वाक, प्लेजेंट स्पीच. सो यावत जीवेत सुखम जीवेत. भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः. जब ये शरीर चला जाएगा उसके बाद पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कौन जानता है. वाई डिबेट इट? वाई डिबेट समथिंग विच कैन नेवर बी प्रूवन? अननेसेसरली डिस्कशंस करते रहोगे. जब तक जीवित हैं तो सुखी हो जाएं. सो गुरु नानक वुड टेल यू, और कृष्णा वुड टेल यू, और गुरु वुड टेल यू कि असली सुख या असली भोग योग में ही है. भोग, भोग मीन्स खुश होना. भोग योग में ही है, बाहर नहीं, अंदर है. सो हम कहें कि ओम शांति शांति शांति, या हम कहें ओम नमः शिवाय, या हम कहें एक ओंकार सतनाम. लेट्स गो डीपली इनटू इट कि क्या मतलब क्या है. क्योंकि गुरु नानक जी ने बोल दिया एक ओंकार सतनाम और हम भी बोलना शुरू कर दें एक ओंकार सतनाम. इसका जेनेसिस क्या है? हाउ डिड इट कम अप? और किसी ने बोल दिया ओम शांति शांति, तो हम भी बोलना शुरू करते हैं ओम शांति शांति शांति. वो ओम ही अल्टीमेट रियलिटी है. किसी ने एक्सपीरियंस तो की होगी ना. अगर गुरु नानक जी ने एक्सपीरियंस नहीं की थी तो वो कैसे लिख सकते थे ओम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त. ओम मूरत है. मूरत मतलब, मूरत वो होती है जो आपको अच्छी लगे. मूर्ति जो आपको अच्छी लगे, which attracts you, with which you can connect. Everything which you see with these two eyes will be perishable, necessarily be perishable. You will never be able to catch it. And even if you catch it, and when you catch it, it will cease to have that taste which you thought it will give it to you. Be anything, with any relationship, be it any person or thing,
be it the riches, be it the name or fame. When you reach it, there is nothing in it. But till you reach it, it is everything to you. And so is it true about knowledge also, by the way. Knowledge also, the highest knowledge. When it comes to you, it will cease to give you the taste. But ik omkar is that which can constantly, permanently, eternally keep you driven, keep you in bliss. That is Om. That is ik omkar. And how will that happen? Through the agency of a guru. Guru will repeatedly hammer into you that what you're seeking outside of you will never be able to satisfy you. What will satisfy you will be your eternal quiet. When you are in love, there is some song which starts resonating inside you. That's the song of silence, or call it song of love. Song of love means what? Two things becoming one is called love. Outside of you, no two things can become one. Inside you, that eternal reality, which is you, which is him, can become one. Guru is just a reminder. Guru in the form of a body is a reminder about who you are and about who your Paramatma is. Paramatma or God means your beloved is, whom you're seeking, whom you truly need, without whom you're incomplete. And that is Omkar. That is Om. All the three gunas are permeated by that which is one. That is why Ik, Om, Akar. Akar means it's always in bliss. You know, on top of the symbol called Ik Omkar, there is bliss, there is a dance, there is a nritya. It's just mathematics. Zero is a hero when one connects with it. But when one is not there, zero doesn't exist. Non-existent. But one connects with it, it can now become millions and trillions and quadrillions. Because keep adding zeros now. Just one is required. That one is what Guru symbolizes. He symbolizes. He's just a reminder. He's just a call. Pranava. एक ओंकार को प्रणव बोला गया in Sanskrit. Pranava means the ultimate call of love. जो आपको बुलाता है वापस. कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है. तकाजा होते हैं कि I cannot live without you. Come back. कहाँ हो? कहाँ ध्यान इधर उधर बिखर गया है? ध्यान को वापस मेरी तरफ ले आओ. किस तरफ? गुरु इज जस्ट अ सिंबल. गुरु इज जस्ट अ कॉल. किस तरफ? एक ओंकार की तरफ, प्रणव की तरफ, जो आपको बुला रहा है. प्रणव स्पीक्स थ्रू द गुरु कि तुम वापस एक ओंकार हो जाओ. तुम और मैं एक हैं. कहाँ हो तुम चले आओ. मोहब्बत का तकाजा है. मोहब्बत मीन्स लव. उसका तकाजा है, उसकी रिक्वायरमेंट है that let us become one back again. गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है. दुनिया किसने बनाई? एक ओंकार ने बनाई, ओम ने बनाई, जो आपको शांति दे सकता है. सो ओम इज सेइंग
कि अभी क्रिएशन तो मैंने बना दी है, बट नाउ आई वांट योर अटेंशन बैक अगेन। अटेंशन को क्या बोलते हैं? ध्यान। और ध्यान संभव कैसे है? विदाउट लव। जहां जहां भी आपका ध्यान बिखरा हुआ है और आप बिखरे हुए हैं, क्योंकि ध्यान बिखरा हुआ है इसलिए आप बिखरे हुए हैं, वो सुलझाएगा कैसे? जब मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। अब तो टोह टोह न लाके किस तरह गिरहा ये सुलझ। जब आप बहक जाएंगे, पहले बहके हुए हैं, अभी ऐसे बहक जाएंगे कि बस पकड़े जाएंगे, तो महक आ जाएगी। आपके अंदर की जो महक है, वो मिसिंग है जो, वो वापस आ जाएगी। यू विल बी ड्रिवन, देन यू विल बी इलेक्ट्रिफाइड। सो गुरु नानक is just reminding you कि through entire Guru Granth Sahib, what am I trying to tell you? एक ओंकार सतना, असली रियलिटी ओंकार ही है। और वही आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फुलफिल कर सकती है, विच इज कॉल्ड ओम शांति शांति शांति। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ओम ही आपको शांति दे सकता है। और जो भी आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मेरे जैसे, उसने ओमकार का रस पिया हुआ है, तभी तो बातें निकल सकती। उनके नाम कुछ भी रख दीजिए, चाहे उनको बुद्ध बोलिए, चाहे उनको रामानुजाचार्य बोलिए, या मध्वाचार्य बोलिए, या शंकराचार्य बोलिए, जो भी बड़ी बड़ी बातें करता है, वेद वेदांत लिखता है, वेद व्यास जी हैं, वो एक ओंकार के रस में समाये हुए। फिर वो कुछ भी बोलते रहते हैं, दैट इज फाइन। कुछ भी बोलते रहते हैं, चाहे उसको ओशो रजनीश बोलिए, कुछ भी बोलिए, हरे राम। सो एक ओंकार इज अ रिमाइंडर, इट्स अ कॉल। वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। कहाँ उलझे फिर रहे हो? माणू कल्ले उठी चले, साध नाही इवें ही गल्ले। छोटे छोटे मंत्र लिख देते हैं, संस्कृत में बोल दिया होगा किसी ने, या इंग्लिश में बोल दिया होगा, दैट डजंट मैटर। यू शैल सी द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल लिबरेट यू। अभी इंग्लिश में बाइबल ने बोल दिया। वेल, ये ट्रूथ क्या है? यू शैल सी द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल लिबरेट यू। सो जीसस ने बोल दिया किसी दिन आपको सत्य के दर्शन होंगे। सत्य क्या है? एक ओंकार सतनाम। हरे कृष्णा। और ये प्रेम से ही होगा, आमीन से होगा। जो कुछ हो रहा है वो होने दो, तुम अपने प्यार प्रेम में बस जाओ वापस। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। ये वर्ल्डलीनेस ज्यादा देर नहीं चल सकती। ये वर्ल्डलीनेस में सुख नहीं है, सुख केवल प्रेम में ही है। सारा दिन वर्ल्डलीनेस थका देती है आपको। चलो थक लिया करो, फिर सो जाया करो, फिर दोबारा अपने आप को चार्ज करा करो। दिस इज व्हाट सर्केडियन रिदम इज। चार्ज करने को बोलते हैं सत्व गुण। सत्य को एक्सपीरियंस करा करो। सत्य क्या है? एक ओंकार, अपनी ही साइलेंस को जितने ज्यादा देर चार्ज कर लोगे उतना ही अच्छा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, एक्चुअली 3 घंटे ही बने हैं उसके लिए। 3 से लेके 6 बजे तक, 3 to 6 in the morning is time to charge yourself. Charge yourself. उसके बाद तो then you have to do your earn your living. 6 o'clock के बाद earn your living till 6 in the evening. After all, जिंदा भी तो रहना है। यावत जीवेत सुखम जीवेत। जिंदा भी रहना है,
घर भी होना चाहिए, परिवार भी होना चाहिए, किचन भी चलना चाहिए, एयर कंडीशनर भी होने चाहिए, व्हाई नॉट, कार भी होनी चाहिए, व्हाई नॉट, डू योर, आई मीन, यूटिलाइज द डे इन दैट रजो गुण, एंड देन तमो गुण, सो जाओ, तमो गुण, otherwise you will be like bats and owls and nishachar and rakshas. 6 बजे के बाद जो उठते हैं उनको राक्षस बोलते हैं, निशाचर, owls बोलते हैं, bats बोलते हैं, the ones who love darkness. We are not, we are flowers, sunflowers. We need light, human beings. Don't compare yourself with bats and nishachar, and don't become rakshas by eating flesh. Our digestive system is not meant for flesh. Our digestive system is made for plants. I told you, trillions of our helpers are living in our digestive system. Microflora, microbiota, and they yearn for plant food. They are killed by animal food. Animal food gives us proteins, but they kill all our 50% of our cells. 50% of our cells is microflora, microbiota. 50% is our body cells. So half of this body is my helpers, and half of this body is these cells. So take care of your helpers. Your helpers require plant food. They don't require flesh, dead flesh. They don't. So we kill ourselves by taking these toxins. Flesh is a toxin. Alcohol is a toxin. Smoking is a toxin. Staying awake in the night is a toxin. Those bacteria, the entire creation follows the circadian rhythm. जब सूर्य निकलता है वो चिड़ियाँ जागती हैं, फूल खिलते हैं. जब सूर्य सेट हो जाता है तो everything goes to sleep. It is only a man who's got the privilege, stupid privilege, to be either a bat or an owl or a nishachar or become a devta. Make yourselves into a devta. रात के टाइम पे सो जाया करो, दिन सुबह उठते 3 बजे चौथे पैर में उठ जाया करो ब्रह्म मुहूर्त में. यही तो गुरु नानक बोलेंगे, यही तो जीसस बोलेंगे, यही तो बुद्ध बोलेंगे. ब्लेस योर सेल्फ. उद्धरेत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादयेत. अपना ही पतन खुद ही तो करते हो. ये शेर को नहीं बोला जा सकता, ये बकरी को नहीं बोला जा सकता, बिकॉज वो तो सब अपना रिदम फॉलो करते हैं. इट्स ओनली ह्यूमन हु हैज गॉट द एबिलिटी, द प्रिविलेज, द स्टूपिड प्रिविलेज ऑफ killing himself or blessing himself. So ना आत्मानम अवसादयेत. अपना पतन खुद ही करते हो, मत करो. और जिस दिन जाग जाओ तभी ठीक है. The day you wake up, it's fine. I woke up at the age of 30. So, well, anybody can wake up at any time. So I feel like a 35 years old now because I woke up, I took birth at the age of 30. So I am now at 35. So you see, एक ओमकार, सतनाम, ओमकार ही भोग है. उसको ही मान लो कि भोग है. ओमकार को ही भोग करा करो. वही योग है, वही ओम, वो सब कुछ वही है आप ही के अंदर. इन साइलेंस एक्सपीरियंस दैट सॉन्ग. जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे 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 आप क्वाइट होते जाओगे. जैसे जैसे क्वाइट होते जाओगे ऐसे ऐसे नाद ब्रह्मन बजना शुरू हो जाए. फिर अंदर से निकलेगा, कैसी आरती होए पावखंड ना तेरी आरती, अनहता शब्द बाजंत पेरी. So it can be Guru Nanak saying it or Guru Gobind Singh saying it or a Shankaracharya saying it. That doesn't matter.
What matters is, do you experience it or not? You must experience it, every human being. And thereafter, be quietly in your cave. Baba Bakala, be in your cave. There's no need to show yourself. You stay quietly to yourself. Because then you would have achieved whatever is the purpose of life. There's no need for name and fame. People took out forcibly Baba Bakala out and made him Guru Tegh Bahadur, but he was not interested. He was fine within the cave. Vaheguru, 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 Vaheguru. एक नाद है जो बज रहा है, सारा दिन बज रहा है, दिन रात बज रहा है. That is the song of love. That is what Guru manifests. That's what he reminds you. That's what he lives in. That's the ultimate intoxication. That's what Yavat Jivet Sukham Jivet. We criticize Charvak and Lokayat. It is the truth. जब तक जिंदा हो खुश रहो. और खुश दुनिया से तो नहीं हो सकते. खुश तो आप अपने अंदर ही हो सकते हो. So there's nothing wrong in seeking happiness. Absolutely anyone and everyone wants happiness. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Vaheguru. This is just a symbol. Get connected. Get connected. Get connected. Hare Ram. Ram jao. Hare Ram. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.